Are you weary? Are you weary? Said. Are you tired beneath your heavy load? Are you weighed down and at last confess? Are you weary? Are you weary? Said. Are you tired beneath your heavy load? Are you weighed down and at last confessed? You cannot carry this burden on your own. Find rest, find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest for your soul, light and easy. Come take my yoke. Come to me now, lay your burdens here. Walk with me now in quietness and trust. I am gentle, cast aside your fear. I befriend you with my steadfast love. Find rest, find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest, find rest for your soul, light and easy. Come take my yoke. All the work is done. It is finished. No, you're not enough, but it is finished. I will lead you on till at last you're home, ever to sing this song. It is finished. Find rest, find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest, find rest for your soul, light and easy. Come take my yoke.
Are you weary? Are you weary? Fed? Are you tired beneath your heavy load? Are you weighed down and at last confessed? You cannot carry this burden on your own. Find rest. Find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. Come to me now, lay your burdens here. Walk with me now, in quietness and trust. I am gentle, cast aside your fear. I'll befriend you with my steadfast love. Find rest. Find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. All the work is done. It is finished. No, you're not enough, but it is finished. I will lead you on till at last you're home, ever to sing this song. It is finished. Find rest. Find rest for your soul. I'll walk beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. Find rest. Are you weary? Are you weary? Fed? Are you tired beneath your heavy load? Are you weighed down and at last confessed?
beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. Come to me now. Lay your burdens here. Walk with me now in quietness and trust. I am gentle. Cast aside your fear. I befriend you with my steadfast love. Find rest. Find rest for your soul. I walk beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. All the work is done. It is finished. No, you're not enough, but it is finished. I will lead you on till at last you're home. Ever to sing this song. It is finished. Find rest. Find rest for your soul. I walk beside you. You're not alone. Find rest. Find rest for your soul. Light and easy. Come take my yoke. Find rest. Are you weary? Are you weary? Fed? Are you tired? हम लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह से उतना प्यार नहीं कर पाएंगे कभी भी जितना वो हमसे प्यार करता है। एंड दैट वाज रियली अमेजिंग कि यीशु मसीह को पता था कि हम लोग उतना प्यार कभी उनसे नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल ही डाइड फॉर अस। एंड दैट वाज सो अमेजिंग। क्यों ना परमेश्वर को थैंक यू बोले इस बात के लिए। लॉर्ड, सच में परमेश्वर पिता, आपका प्रेम कितना गहरा था लॉर्ड, आपका प्रेम कितना अद्भुत था लॉर्ड, कि आप जानते हैं लॉर्ड कि हम आपसे कभी उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल यू डाइड फॉर अस लॉर्ड। Still you died for us, Lord, Father God. And that's why, Lord, आपका प्रेम, Lord, एक सेल्फलेस प्रेम है, Lord. आपका प्रेम, Lord, परमेश्वर पिता, हमारे एक्टिविटीज, हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, Lord, बट आपका भलाई के ऊपर पिता वो डिपेंड करता है. And we give you thanks, Lord, Father God, for this, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, परमेश्वर पिता. And
And the song we sing, Lord Father God, for you, Lord Father God, because you deserve it all, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मुझे चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे
More love and more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with
था लॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर एक हृदय था लॉर्ड, वो हृदय लॉर्ड जैसा आप चाहते हैं लॉर्ड, वो आपका हृदय लॉर्ड। हाँ परमेश्वर पिता, पर आपने पिता इस समय लॉर्ड नए नियम में लॉर्ड उससे बढ़ के दिया लॉर्ड। आपने कहा कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा तुम्हारे अंदर है लॉर्ड। वो पिता का आत्मा पिता आपने दिया लॉर्ड, वो हृदय से बढ़ के परमेश्वर पिता। और हम चाहते हैं लॉर्ड, आपने जो भूख और प्यास को दिया लॉर्ड, आप उसे और बढ़ाइए लॉर्ड अपने लोगों में लॉर्ड, और बढ़ाइए लॉर्ड कि हम प्यासे होना चाहते हैं आपके लिए लॉर्ड। क्योंकि लॉर्ड अगर हम प्यासे नहीं रहेंगे लॉर्ड, अगर हम पिता भर जाएंगे लॉर्ड, तो हम संसार की ओर लौट जाएंगे लॉर्ड। बट लॉर्ड हम नहीं लौटना चाहते लॉर्ड, हम आपकी ओर लौटना चाहते हैं लॉर्ड। क्योंकि आपने पिता, आपने होशे के समय भी कहा था लॉर्ड परमेश्वर पिता कि ये लोग पूर्ण हो गए, भर गए, इसलिए पिता संसार में लौट रहे हैं लॉर्ड। पिता आप उन्हें वापस लेके आए लॉर्ड। वी आर लॉर्ड, वी वांट टू कम लॉर्ड फादर गॉड टू यू लॉर्ड। आप परमेश्वर पिता वो महान पिता है लॉर्ड, वो महान परमेश्वर है लॉर्ड, जिसने पिता एक प्रोस्टिट्यूट से पिता प्रेम किया लॉर्ड। एंड वी आर दैट लॉर्ड फादर गॉड। बट स्टिल लॉर्ड यू रिडीम्ड अस लॉर्ड फादर गॉड। Thank you Lord for the atonement Lord Father God. Thank you Lord for redemption Lord Father God. जहाँ पे कोई आशा नहीं था लॉर्ड, आपने वो आशा को दिया लॉर्ड। पिता अन्य जाति लॉर्ड आपके अनुग्रह को लॉर्ड, आपके प्रेम को परमेश्वर को उस पर हंसते हैं लॉर्ड। पर पिता हम जान पाते हैं लॉर्ड कि कितना अनोखा प्रेम है लॉर्ड आपका, कितना अनोखा अनुग्रह है आपका लॉर्ड परमेश्वर पिता। एंड लॉर्ड वी कम टू यू लॉर्ड, वी सरेंडर आवरसेल्फ लॉर्ड फादर गॉड। एंड लॉर्ड फिर से पिता हम आते हैं पिता आपके पास लॉर्ड, आपके बेटे बेटी के समान लॉर्ड। हाँ परमेश्वर पिता फिर से आते हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लड लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड कि आपने पिता हमें एक पुत्र, एक बेटा, एक बेटी कहा लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमसे विवाह किया लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमसे लॉर्ड वो रिश्ता को पिता बनाया लॉर्ड। We give you thanks, we give you honor, we give you glory Lord. Lord, you be our King Lord Father God, you be our head Lord. Let the kingship belongs to you Lord Father God. Yes Lord, in our life Lord, in our church Lord Father God, in our family. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
वो छुटकारा का ज़रूरत है, और हम वो जीवन चाहते हैं प्रभु जिसमें आप हमारे साथ सिर्फ चर्च में ना रहे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हर एक जगह में रहे प्रभु। जैसे हमने गाया, हमने विश्वास किया प्रभु, हमारे साथ हर एक जगह में रहिए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे प्रभु दिन भर, और दिन भर हम जो भी करें प्रभु वो आपको भाता रहे। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दीजिए कि आपको जान सके, आप हमारे और करीब आ सके, हम आपके और करीब आ सके। धन्यवाद प्रभु, हमारे मन को आज ज्योतिमय कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। न्यायों का 8वां अध्याय 22वां पद पढ़ेंगे। ज्ञान के हाथ से छुड़ाया है। यहाँ पे दो रिक्वेस्ट एक के बाद एक किया जाता है। पहला रिक्वेस्ट इजराइलियों की ओर से है गिदोन के लिए, और दूसरा रिक्वेस्ट गिदोन के ओर से है इजराइलियों के लिए। इजराइली यहाँ पे जय पाने के बाद यहाँ पे गिदोन से कहते हैं, हम पे राज कर, तू राज करना, उसके बाद तुम्हारा बेटा राज करे। यहाँ पे तुम अपना इजराइल का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा राज्य बने। यूहन्ना का 6:15। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु ये जानकर कि वो उसे राजा बनाने मांगते हैं, उनसे दूर चला गया, अपने आप को छुपा के उनसे और भी दूर चला गया। ये लोग इतना ज़्यादा अचानक से क्यों इंटरेस्टेड थे यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए? ये लोग अचानक से यीशु मसीह में इतना ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे कि मतलब हम लोग यीशु मसीह का राज करने का गीत गाते हैं, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तू कब्जा कर, तू राज कर, तू राज करे, एंड यहाँ पे ये लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग वही कर रहे हैं, और यीशु मसीह इनसे दूर भाग रहे हैं। जो चीज़ हम लोग को मालूम है कि सही है, लाइक यीशु मसीह आपको राज करना है, एंड जो चीज़ यीशु मसीह भी चाह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर राज करे, लेकिन वो पल जब यीशु मसीह, जब लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, हे रवि आप राजा बनिए, आपको हम लोग राजा बनाएंगे, तो यीशु मसीह उनसे दूर चले गए। यीशु मसीह उनसे दूर चले गए। क्यों? 13 और 14, वर्स 13 एंड वर्स 14। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हाँ, ये इतना इंटरेस्टेड क्यों थे यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर दिया। इनका यीशु मसीह का एक चमत्कार से उनको पता चल गया कि लाइफ का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यीशु मसीह सॉल्व कर दिए हैं। क्या का? खाना पीने का। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 महीना आप कितना खर्चा करते हैं बस अपने पेट पे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और यीशु मसीह यहाँ पे क्या किए? एक बार में दिखा दिए कि हजारों लोग को वो थोड़ा सा 5 रोटी 2 मछली, थोड़ा सा 5 रोटी 2 मछली के ऊपर प्रार्थना किए और हजारों को तृप्त किए। मतलब एक चमत्कार से यीशु मसीह इनका पूरा साल भर का खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि इनका पेट भर गया था और ये लोग देखे कि मेरा पेट का ये जो लगातार भूख रहता है, ये यीशु मसीह ठीक कर दें। जो भी हम लोग का लाइफ में वो एक चीज़ जो हम लोग सोचते हैं ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, एक घर मिल जाए, या तो कम से कम इतना पैसा मिल जाए कि हमको ऐसा किस्म का नौकरी नहीं करना पड़े, हम आराम से लाइफ में अपना चॉइसेस ले सके जो हम करने मांगते हैं। एंड यीशु मसीह आए और वैसा एक चमत्कार किए जो उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एंड उसके बाद ये लोग तुरंत डिसाइड किए यीशु मसीह को राजा बनाएंगे, और यीशु मसीह दूर हट गए। क्यों? क्योंकि मिरेकल्स, चिन्ह, चमत्कार, ये सब हम लोग का मन के अंदर एक तुरंत, एक अचानक से एक तुरंत एक बदलाव लाता तो जरूर है।
चमत्कार हुआ, तुरंत बदलाव, मन बदल गया। यीशु मसीह आप राजा बनिए प्लीज़, हम लोग आपके सामने झुकेंगे, हम लोग आपके सामने दंडवत होंगे, आपका चमत्कार बढ़िया है, हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए, ये चमत्कार चाहिए, हम लोग को चिन्ह चाहिए। उनका शरीर, उनका पेट भर गया था, खुश था ये खाना से। वचन में लिखा हुआ है कि सबने खाया और सब संतुष्ट थे। उनका चिंता दूर हो गया, वो संतुष्ट हो गए, और तब वो लोग ने कहा यीशु मसीह को राजा बनना चाहिए। मुझे याद है पहले संडे इवनिंग मीटिंग्स हम लोग रखते थे जीटीसी के ही, एंड जो लोग पुराने हैं वो लोग याद करते होंगे कि उस समय शहर में अलग अलग परिवारों के घर में अलग अलग जगह में होता था ये संडे इवनिंग मीटिंग्स। एंड पूरा हफ्ता में आई थिंक मेरा सबसे कठोर मैसेज संडे इवनिंग को ही रहता, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग आते थे वो लोग रिलीजियस लोग थे, वो लोग कन्वर्ट्स नहीं थे, वो लोग ज़्यादातर उतने जवान भी नहीं थे, लेकिन अगर जवान थे तो मतलब 3rd 4th जनरेशन 5th 6th 7th 8th जनरेशन क्रिश्चियन थे। मतलब जहाँ तक उनका फैमिली ट्री देखेंगे तब से वो लोग चर्च में ही बैठे हुए थे। ओके, और सब लोग मरे हुए कामों में, कोई अलगाव नहीं, कोई पवित्रीकरण नहीं, लेकिन संडे शाम क्रिश्चियंस के साथ गेट टुगेदर करना एक अच्छा चीज़ है, डिनर भी है, तो मिलना जुलना। एंड मैं लगातार सिर्फ एक ही टॉपिक प्रचार करता था, मरे हुए कामों से मन फिराओ। जितना बार भी मैं वो संडे इवनिंग प्रचार किया, मैं एक ही चीज प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। आत्मिक भाषा में जितना कठोर शब्द, जितना आत्मिक गाली अगर बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, सब ट्राई किए। एंड मेरा मन में दो उम्मीद था, लगेगा और लोग छोड़ देंगे आना, लगेगा और लोग बदल जाएंगे। दोनों नहीं हुआ, लोग आना छोड़े नहीं और बदले नहीं। एंड हम भी सोचे कि कैसे ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अभी भी आ रहे हैं और फिर भी बदल नहीं रहे हैं, और वचन बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। तब एक दिन डिसीजन लिया, नहीं आई रियली बिलीव कि प्रभु का अगुवाई से वो डिसीजन हुआ, क्योंकि जितना बार भी मैं उस बारे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्रभु ही वो डिसीजन डाले मन में लेने के लिए, कि वो वाला मीटिंग कैंसिल कर दी और बोले कि हफ्ता में अलग अलग, बाकी दिन भी मेरा अलग अलग मीटिंग्स रहता है, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे अलग अलग जगह में मीटिंग्स रहता है, वो मीटिंग्स में आ जाइएगा। लेकिन एक चीज़ था जो वो मीटिंग्स में नहीं था, डिनर। स्नैक्स था, चाय था, बिस्किट्स था, चनाचूर था, बट डिनर नहीं था। एंड वचन इनफैक्ट ज़्यादा इनकरेजिंग रहता दूसरा मीटिंग्स में, ज़्यादा विश्वास के ऊपर रहता, क्योंकि वो सब मीटिंग्स में वो लोग आ रहे थे जिनका लाइफ में मन फिराना हुआ था कुछ हद तक, एंड विश्वास भी आ गया था कुछ हद तक, अलगाव भी आ गया था कुछ हद तक। एंड हम देखे कि वो पुराने परिवारों में से मुश्किल से 1 2 3 परिवार ही आए, और बाकी नहीं। बहुत बार जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े, यीशु ने कहा तुम लोग मुझे क्यों खोज रहे हो, क्योंकि तुम लोग का पेट भर गया है। वो लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि वो लोग का पेट भर गया था। हमेशा भोजन के बारे यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन शरीर को जो भी चीज़ से अचानक से फायदा हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जब शरीर को फायदा हो जाता है, चिन्ह से, चमत्कार से जब शरीर को फायदा हो जाता है, तब हम लोग का तुरंत मन बदलता है और हम लोग चाहते हैं प्रभु आप राज कीजिए, प्रभु आप राज कीजिए, प्रभु आप राजा बन जाइए। शरीर को चंगाई पसंद है, शरीर को चमत्कार पसंद है। किसका शरीर को पसंद नहीं है? आप एक शैतान का पुजारी को भी ला दीजिए, आप एक नास्तिक को भी ला दीजिए और पूछिए क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, हर एक व्यक्ति जो भी शरीर में है उसको ये चीज़ सब पसंद है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है उसका मन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर है।
जो आत्मिक व्यक्ति है वो अपना शरीर में, हम लोग पहला कोरिन्थियों का 2:15 में देखें कि आत्मिक व्यक्ति सब चीज़ों को जज करता है, अपने शरीर में हर विचार को जज करता है, और उसे आत्मिक व्यक्ति शरीर को मारते हुए कूटते हुए शरीर को वश में लाता है। क्या का वश में? शरीर को शरीर के वश में नहीं लाता है, शरीर को आत्मा के वश में लाता है। आत्मा का प्रभुता करने देता है शरीर के ऊपर, आत्मा को राज करने देता है शरीर के ऊपर। और जब आत्मा शरीर के ऊपर राज करेगा तब चंगाई, तब 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 चंगाई, भलाई, उन्नति, आशीष, ये सब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। चलिए प्रभु आके यहाँ पे एक वचन देते हैं किसी भाई किसी बहन को। जस्ट इमेजिन, परमेश्वर आके वचन दिए राज को, राज जिंदगी भर तुमको कभी सर्दी, बुखार, खांसी, गला का इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। मन में क्या आया? आइसक्रीम। यू सी, अब क्या वचन अच्छा नहीं है क्या? क्या चमत्कार अच्छा नहीं है क्या? जरूर अच्छा है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा राज करेगा तब हम लोग सोच सकते हैं कि लॉर्ड, तब हम मॉनसून में भी बिना चिंता किए, विंटर में भी बिना चिंता किए हम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। कहीं पे भी लॉर्ड आप भेजेंगे हम जा सकते हैं, कोई भी मौसम में। क्यों? हमको कभी ठंडा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा वही चंगाई को इस्तेमाल करेगा, वही वचन को इस्तेमाल करेगा पवित्र कामों के लिए, परमेश्वर का सेवा को बढ़ाने के लिए, प्रभु में और बढ़ने के लिए। और शरीर वही चीज़ को इस्तेमाल करेगा शारीरिकता में बढ़ने के लिए, इस देह का हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए, शारीरिकता का हर एक सुख विलास का इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभु अगर वचन देगा कि तुम्हारा पेट कभी नहीं खराब होगा, अगर हम आत्मिक हैं तो हम लोग बोलेंगे लॉर्ड हम कहीं भी मिशन ट्रिप्स के लिए जा सकते हैं, कोई भी कुछ भी जानवर, कुछ भी कितना पुराना खाना मेरे सामने रख दे, खाना छोड़िए, वो लोग बगल से नाली से पानी उठा के दे दिया, हम लोग तो यही पानी पीते हैं, चापाकल से दिया, नदी से दिया, नाला से दिया, कहीं से भी नदी से लाके कोई भी पानी दे दिया हम लोग पी लेंगे। आत्मा सोचेगा बढ़िया है, हम मिशन ट्रिप्स के लिए तैयार हैं। क्यों? हम कहीं पे भी जा सकते हैं प्रभु, पानी से मेरा, क्योंकि पानी से वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत रहते हैं। लॉर्ड अब पानी से मेरा पेट कभी नहीं खराब हो, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर शारीरिक व्यक्ति है तो वो खाना कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? अब हम जितना चाहे खा सकते हैं, जितना झाल, जितना मीठा, कुछ भी, मेरा शरीर में अब खाना की वजह से कोई बीमारी नहीं आने वाला है। सो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे परमेश्वर ये देख रहे हैं कि ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं, ये लोग क्यों मुझे राजा बनाने मांग रहे हैं। इनका शरीर यीशु मसीह को राजा बनाने मांग रहे हैं, उनके अंदर अभी भी वो अभी भी आत्मिक नहीं बने हैं। बहुत शारीरिक लोग भी यीशु मसीह को राजा बनाने मांगते हैं और यीशु मसीह उनसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक हैं, वो यीशु मसीह का हर एक आशीष को इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने इंडल्जेंस के लिए। इसलिए शरीर को चंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर को भलाई और उन्नति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पौलुस जानता था कि बहुत लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह राजा बने, लेकिन ऐसा किस्म का यीशु मसीह राजा बने, ऐसा राजा जो हम लोग के लाइफ पे जीरो डिमांड्स रखता है, कोई डिमांड नहीं। यीशु मसीह कुछ डिमांड नहीं करेंगे। और यही चीज़ के बारे में पौलुस पहले ही बताया था 2 टिमोथी 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार शरीर उनके ऊपर राज कर रहा है। अगर शरीर राज करेगा तो आप अपने अभिलाषाओं के अनुसार डॉक्ट्रिन्स को पसंद करेंगे। अगर आत्मा राज करेगा
तो शरीर को, तो आत्मा राज करेगा, तो आत्मा को वो सब डॉक्ट्रिन पसंद आएगा जिससे आपका शरीर को बार बार ठोकर लगता है, जो आपका शरीर में चुभते रहता है। क्योंकि आत्मा कहेगा कि और तलवार लोहा लोहा को चमकाता है। और पौलुस ये देख लिया था कि बहुत लोग अपने अभिलाषाओं को नहीं मारने वाले हैं, लेकिन अपने अभिलाषाओं के अनुसार रिलीजियस टीचर्स को भर देंगे अपने लाइफ में। और ये चीज़ को तोड़ने के लिए, अपने अंदर ये चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग को अयूब जैसा एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा। अयूब ने एक कमिटमेंट लिया था प्रभु के लिए। अयूब का 13:15, वो मुझे घात भी कर दे, वो मुझे मार भी डाले, इवन दो ही स्ले मी, आई विल स्टिल ट्रस्ट इन हिम, फिर भी मैं उसी पे आशा रखूंगा। आई विल स्टिल ट्रस्ट हिम, येट विल आई ट्रस्ट हिम, वो मुझे मार भी दे फिर भी मैं उसी पे भरोसा रखूंगा। नॉट कि आप मुझे चंगा कर दीजिए और मैं आप पे विश्वास करूंगा, यीशु मसीह चंगा कर दे, यीशु मसीह चमत्कार दे दे और मैं विश्वास करूंगा। नहीं, यीशु मसीह मुझे मार भी दे फिर भी मेरा विश्वास बना रहेगा। ये था अयूब का कमिटमेंट। नाउ इसका उल्टा भी, इसको दूसरा तरफ भी एकदम एक्सट्रीम नहीं ले जाना है कि हमें विश्वास अपना कमज़ोर रखना है। मैं कमज़ोर विश्वास को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि चंगाई में मत विश्वास करो, चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो, चमत्कार में मत विश्वास करो, चमत्कार के लिए प्रार्थना मत करो। नहीं, वो कमज़ोर विश्वास है। डिसाइपल्स, अपोस्टल्स, ये लोग लगातार चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, जगह जगह लोग के ऊपर हाथ रखते थे और क्या बोलते थे? प्रभु चंगा कर दीजिए, है कि नहीं? तो चंगाई के लिए लगातार हम लोग को प्रार्थना करना है, मिरेकल्स के लिए हम लोग को लगातार प्रार्थना करना है। एंड ये लिखा हुआ है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। एंड ये सब साइंस, ये सब चिन्ह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग कमज़ोर विश्वास को और जो एकदम नाजुक कमज़ोर विश्वास है उसको पुलपिट से लगातार हम लोग अपने अंदर डांटते रहेंगे कि नहीं, हम तो विश्वास करेंगे ही चंगाई के लिए, हम तो विश्वास करेंगे कि ये बीमारी मेरे शरीर से दूर हो जाएगी, हम तो ये विश्वास करेंगे ही अपने परिवार के चंगाई के लिए और अपने परिवार में चमत्कार के लिए, जॉब में चमत्कार के लिए, अपने फ्रेंड्स और जिसको भी गॉस्पेल दे रहे हैं हम उनके लिए चमत्कार के लिए विश्वास करेंगे ही। तो हम लोग को ये वीक फेथ नहीं रखना है कि अपने अंदर नहीं, हम विश्वास नहीं रखेंगे, प्रभु चंगा शायद नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग लगातार ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई चमत्कार के लिए लगातार परमेश्वर को उपाय प्रोविजन के लिए प्रार्थना करेंगे, लगातार हम लोग सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वी विल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में हम लोग सदा आनंदित रहेंगे। प्रार्थना करते समय आनंदित रहेंगे। प्रार्थना का जवाब हाँ नहीं जो भी मिले, प्रभु में आनंदित लगातार होना है। ये वचन में ये नहीं लिखा हुआ है कि जब चंगाई मिले तब सिर्फ आनंदित हो, नहीं, वो पुराना नियम में था कि जब वो लोग को चमत्कार हुआ, जब फिरौन का सेना को डुबा दिया गया, तब इजरायली नाचने गाने लगे। हमें वैसा नहीं करना है। हमारे लिए लिखा हुआ है प्रभु में तुमको सदा आनंदित रहना है। और ये रहेगा प्रूफ हम लोग का विश्वास का कि हम लोग एक तरफ हम लोग एकदम डट के प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु आप चंगाई कीजिए, प्रभु आप चमत्कार कीजिए। अनलेस प्रभु डायरेक्टली वचन से बोल देते हैं ये व्यक्ति का चंगाई नहीं होने वाला, इसे मैं घर बुला रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे प्रभु डायरेक्टली वचन नहीं दिए हैं वहाँ पे हम लोग विश्वास करेंगे, वहाँ पे प्रेयर करेंगे। और अगर प्रेयर का जवाब नहीं भी मिला फिर भी हम लोग आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो एक आज्ञा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आप पौलुस से पूछेंगे, पौलुस क्या तुम लगातार चंगाई के लिए प्रार्थना किए? हाँ। टिमोथी के लिए प्रेयर किया, अपने लिए प्रेयर किया, क्या तुमको चंगाई मिला? नहीं, टिमोथी को भी नहीं मिला। आई थिंक एक एपैफ्रोडाइटस था, उसको भी नहीं मिला, एपैफ्रस, उसको भी नहीं मिला, पौलुस को भी नहीं मिला, टिमोथी को भी नहीं मिला। फिर डिड यू रिजॉइस ऑलवेज? पौलुस बोलेगा हाँ, आई ऑलवेज रिजॉइस्ड, आई ऑलवेज रिजॉइस्ड। लगातार वी कीप रिजॉइसिंग, क्योंकि प्रभु ताकत भी देंगे अगर चमत्कार नहीं आया तो। अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं करें। शैतान जो भी आपके लाइफ से चोरी किया है, छीना है, उसके पीछे जाके वो सब वापस सब कुछ को रिकवर करे जो वो चोरी किया है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं। उसका ये मतलब है कि हम लोग ज़रूर पीछे जाएंगे, ज़रूर लड़ेंगे शैतान से, ज़रूर वापस सब कुछ को ले लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि हमेशा हम लोग को प्रभु में आनंदित रहना है। लड़ते समय शैतान से जब लड़ रहे हैं उस समय भी आनंदित रहना है,
जब हम लोग को जवाब मिला, जवाब नहीं मिला, हमेशा आनंदित रहना है। और जो कुछ भी हम लोग को फाइनली जब मिल रहा है, शैतान से भी को हरा के फाइनली हम लोग को जो कुछ मिला, उसको भी वो उन्नति, वो सब कुछ को अब हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो चंगाई को, वो चमत्कार को, ताकि हम लोग परमेश्वर को और भी अच्छा से सेवा कर सके। वो सब ब्लेसिंग को इस्तेमाल करेंगे दूसरों के लाइफ में ब्लेसिंग बनने के लिए। लेकिन जो मोटिवेशन इजराइलियों के अंदर था गिदोन को राजा बनाने का, वो मोटिवेशन पूरा शरीर से उत्पन्न हुआ था। जो मोटिवेशन यहूदियों के अंदर था कि वो लोग यीशु मसीह को राजा बनाएंगे, वो मोटिवेशन पूरा का पूरा शरीर से था। और गिडियन ने जवाब दिया वर्स 23 में, जजेस चैप्टर 8 वर्स 23। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। हाँ, मैं तुम पे प्रभुता नहीं करूंगा, मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर नहीं, यहोवा तुम्हारे ऊपर प्रभुता करे। गिदोन ये बारे में एकदम जागृत था कि परमेश्वर राजा हैं, कोई भी जगह खाली नहीं हुआ है कि मुझे वो जगह पे चढ़ जाना है लोगों के कहने पे। भजन का 80 का 1 और 99 का 1। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तू जो करूबों पर विराजमान है, यू आर एनथ्रोन्ड बिटवीन द चेरुबिम, यानी कि वाचा का संदूक के ऊपर जो करूब थे, उन दोनों के बीच में प्रभु वहां पे आप बैठे हुए हैं, वो आपका सिंहासन है। और 99 का 1, ओके, यू आर एनथ्रोन्ड बिटवीन द चेरुब, तू विराजमान है। हाँ, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। सो इजराइल के पास एक राजा है। गिदोन को राजा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी एक राजा है। एंड ये अच्छा था कि इंपॉर्टेंट है ये कि गिदोन ये चीज को जज किया कि उस समय उस परिस्थिति में परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के थ्रू नहीं भेज रहे थे कि गिदोन राज करे, पर लोग आ रहे थे गिदोन के पास और लोग कह रहे थे गिदोन को राज करने के लिए। दाऊद के पास सैमुएल आया, दाऊद सैमुएल के पास नहीं गया। दाऊद लोगों के कहने पे राजा नहीं बना, वो एक अभिषेक पाया था, उसके ऊपर वो तेल उंडेला गया था एक भविष्यवक्ता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का भविष्यवक्ता के द्वारा, सैमुएल के द्वारा परमेश्वर दाऊद को राज करने के लिए चुन रहे थे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग चुन रहे हैं और गिदोन ने साफ इनकार कर दिया। एंड हम लोग का लाइफ में बार बार ये टेस्टिंग रहेगा कि बहुत बार परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन लोगों की ओर से, लोगों का राय की ओर से लोग हम लोग को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम लोग को साफ इनकार कर देना है। बार बार लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास आके पूछने लगे, क्या तू वही है, क्या तू वही है, क्या तू वही है, क्या तू मसीहा है, क्या तू वो भविष्यवक्ता है जिसके बारे पुराने समय से लिखा गया है? और वो साफ साफ इनकार कर देता, नहीं नहीं नहीं। और वो एक अच्छा तरीका से ये समझाया भी कि मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं दुल्हा का बस दोस्त हूं। वो बार बार ये कहा भी कि मेरे आगे जो आने वाला है उसका शूलेस को भी हम बांधने के योग्य नहीं है, उसका शूलेस को खोलने के भी योग्य नहीं है हम, वो इतना योग्य है। यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था और वो जानता था कि वो क्या है, कितना समय के लिए है। और जब वो देखा कि उसका मिनिस्ट्री कम हो रहा है और यीशु मसीह का बढ़ रहा है, वो खुश था, वो संतुष्ट था, वो आनंदित था और वो चुपचाप हो गया। वो जान रहा था कि उसका समय आ रहा है। और हमें भी अच्छा से समझ जाना है कौन सा चीज़ परमेश्वर हम लोग के लिए नहीं रखे हैं, क्या क्या चीज़ परमेश्वर हम लोग के लिए नहीं रखे हैं। कोई कोई जॉब्स, कोई कोई प्रमोशंस, कोई कोई चीज़ सब, कोई कोई अपॉर्चुनिटीज़ परमेश्वर हम लोग के लिए नहीं रखते हैं। एंड अगर हम लोग परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे तो वी विल नो इट। अगर हम लोग नम्रता के साथ चलेंगे तो हम लोग साफ साफ परमेश्वर से सुन पाएंगे और रिजेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को जो चीज़ परमेश्वर की ओर से हम लोग के लिए नहीं है। कोई कोई किस्म का जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई कोई किस्म का उन्नति, कोई भी, हमें कोई एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे एक रूल नहीं दे सकते हैं, नहीं तो पवित्र आत्मा का ज़रूरत ही नहीं रहता।
लेकिन पवित्र आत्मा जब राज कर रहा है, यानी कि हमारे अंदर जब शरीर के ऊपर हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा आत्मा राज कर रहा है, तब पवित्र आत्मा से हम लोग साफ साफ सुन पाएंगे। और वहाँ पे पवित्र आत्मा कह देगा ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लॉर्ड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, पौलुस इस समय एशिया में मत जाओ। यूहन्ना का 2:23 से 25 तक। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। बहुतों ने चिन्ह को देख के विश्वास किया। ओके, मेनी बिलीव्ड इन हिम बिकॉज ऑफ द साइंस विच ही डिड। हाँ, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि बट जीसस डिड नॉट बिलीव इन देम। अगर आप यूनानी भाषा में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है मेनी बिलीव्ड इन हिम बट जीसस डिड नॉट बिलीव इन देम। यीशु मसीह उनमें क्यों नहीं विश्वास किया? यीशु मसीह उनका विश्वास पे विश्वास नहीं किया, समझे? उनका विश्वास क्या के वजह से था? चिन्ह चमत्कार के वजह से। और इसीलिए यीशु मसीह उन पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनका विश्वास मन फिरा के विश्वास करने वाला विश्वास नहीं था। अपना शरीर और शारीरिक अभिलाषाओं को मार के आत्मा को ऊपर में प्रभुता देने वाला विश्वास नहीं था। उनका विश्वास क्या था? प्रभु मुझे चंगा किया, हम एंजॉय करेंगे, अब हमको चाहिए, ये प्रभु पसंद है हमको। इसलिए आप देखेंगे हीलिंग, मिरेकल और ये सब चीज़ों में भीड़ पे भीड़ रहता है। वही चीज़ नाम बदल के बोल दीजिए, मन फिराओ। यीशु मसीह का आना निकट है एंड वहाँ पे अचानक से भीड़ बहुत कम हो जाएगा। क्यों? जहाँ पे हम लोग एक दूसरा राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे अपना लाइफ को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे लोग तैयार नहीं रहते हैं। एंड इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को उन पे भरोसा नहीं किया। जब भी हम लोग शरीर की ओर बढ़ते जाएंगे और क्रिश्चियनिटी का चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे अपना शारीरिकता को बढ़ाने के लिए, अपना यहाँ का ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, प्रभु हम लोग पे विश्वास नहीं करेंगे। भजन का 103:7, ये लोग सिर्फ परमेश्वर का काम को अपने ज़िंदगी में, परमेश्वर के कामों को, कार्यों को अपने ज़िंदगी में देखना चाहते थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुराने नियम में, परमेश्वर ने मूसा पर अपने मार्ग, अपनी गति, अपने मार्ग, शो नोन हिज वेज टू मोसेस, अपने मार्ग, अपने तौर तरीके प्रकट किए कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर कैसे सोचते हैं, परमेश्वर कैसे चुनते हैं, परमेश्वर कैसे समझते हैं, परमेश्वर कैसे प्रकट करते हैं, परमेश्वर कैसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर कैसे जज करते हैं, परमेश्वर कैसे किसी को अपनाते हैं, किसी को बढ़ाते हैं, किसी को डिसाइपल करते हैं, परमेश्वर कैसे न्याय करते हैं, परमेश्वर कैसे दंड देते हैं, परमेश्वर किसी को अलग कैसे कर लेते हैं, परमेश्वर कैसे किसी को बजाते हैं। ये सारा मार्ग, परमेश्वर के तौर तरीकों को परमेश्वर मूसा पे प्रकट किया। और बाकी इज़राइल पे क्या प्रकट किया? कामों को, द साइंस। वो अद्भुत रूप से आए बादल में, हाँ वो लोग देखे। चमत्कार, हाँ देखे। चंगाई, हाँ वो लोग देखे। लेकिन मूसा को ज़्यादा मिला। क्यों? मूसा अपने ज़िंदगी में मन फिरा के प्रवेश किया था प्रभु के साथ। मूसा अपने ज़िंदगी में आत्मा को प्रभुता करने दे रहा था। इट्स नॉट कि बस एक बार मन फिराए, नहीं, वो लगातार अपने ज़िंदगी में आत्मा को प्रभुता करने दे रहा था। इसलिए अब परमेश्वर, और मूसा के बारे में लिखा गया है कि वो अपना आखिरी दिन तक उसका आँख बढ़िया दिख रहा था उसको, और उसका शरीर में उतना ही ताकत था जितना कि जब वो मिस्र को छोड़ के निकला था। यानी कि उसका आँख कमज़ोर नहीं हुआ, उसका शरीर कमज़ोर नहीं हुआ। वो लगातार चंगाई में चला। उसको तो प्रभु को उसको मारना पड़ा, नहीं तो वो मरता नहीं, क्योंकि उसमें 40 साल का आदमी इतना ताकत था। उसके ऊपर आत्मा प्रभुता कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको और भी दिखा सके, और भी दे सके, और भी इस्तेमाल कर सके। ये वो समय नहीं था कि यीशु मसीह या गिदोन राजा बने, क्योंकि ये लोग के ऊपर आत्मा प्रभुता नहीं कर रहा है। ये लोग शरीर में आके चाह रहे हैं कि यीशु मसीह राज करे। ये लोग परमेश्वर का आशीष को चाह रहे हैं,
लेकिन आत्मा का फल को नहीं चाह रहे हैं। आशीष को चाह रहे हैं लेकिन आत्मा का फल को नहीं चाह रहे हैं। आत्मा का फल है धीरज, आत्मा का फल है धीरज, पेशेंस। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मतलब कि आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, इसलिए आत्मा फल उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर काम करेगा तभी आत्मा फल ला पाएगा। और आत्मा का फल है धीरज। और ये लोग ठहर नहीं पा रहे हैं आशीष पाने के लिए, ये लोग ठहर नहीं पा रहे हैं वो उन्नति के लिए, ये लोग ठहर नहीं पा रहे हैं उस चमत्कार के लिए, ये लोग ठहर नहीं पा रहे हैं, ये लोग के अंदर धीरज नहीं है। एंड जब हम लोग के अंदर आत्मा का फल नहीं है तब वही आशीष को हम लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। जस्ट इमेजिन, नौकरी के स्थान में अगर आपका बॉस आपको कहे कि अगले हफ्ता से हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना और सैटरडे तुमको छुट्टी, यानी कि 1 एक्स्ट्रा दिन का छुट्टी आपको मिल गया, आशीष का कारण है। लेकिन अगर आत्मा प्रभुता कर रहा है तब सैटरडे को इस्तेमाल किया जाएगा प्रभु में बढ़ने के लिए, दूसरों का सेवा करने के लिए, दूसरा मिल चलने के लिए। लेकिन अगर आप आत्मा में नहीं चलेंगे तो सैटरडे को भी बस आप पहला मील चलेंगे, बस अपना काम को देखेंगे, आप दूसरों का बोझ को नहीं उठाएंगे, आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। अगर शरीर प्रभुता कर रहा है और वो सैटरडे जो फ्री डे मिला वो भी शरीर का इस्तेमाल हो जाएगा। जस्ट सोचिए, एक फ्री डे मिलता है, ऑलरेडी हम लोग का माइंड में जो प्लान्स आता है उससे पता चल रहा है कि हम लोग के अंदर आत्मा प्रभुता कर रहा है या शरीर प्रभुता कर रहा है। अगर आत्मा प्रभुता करेगा तो वो सैटरडे के अंत में हम लोग वचन में ज़्यादा समय दिए हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय दिए हैं, आराधना में ज़्यादा समय दिए हैं, सेवा में ज़्यादा समय दिए हैं, परिवार के लिए बड़ा आशीष का कारण रहे हैं, चर्च के लिए आशीष का कारण रहे हैं। एंड इसीलिए सही प्रार्थना बस इतना नहीं है कि प्रभु मुझे आशीष दे, याकूब का भी वही प्रार्थना था, लॉर्ड ब्लेस मी। लेकिन सही प्रार्थना ये है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आप आशीष देंगे, लेकिन मुझे मदद कीजिए कि अब मैं वो आशीष को सही तरीक़ा से इस्तेमाल करूँ, मुझे मदद कीजिए कि मैं बढ़ूँ, कि मैं वो आशीष को सही तरीक़ा से पा सकूँ। गलातियों का 4:1 और याकूब का 1:25। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हाँ, अब आत्मिक बालक जब तक बढ़ेगा नहीं, वचन चाह रहा है कि उसको वो सब चीज़ नहीं मिले, उसको वो सारा आशीष नहीं मिले जब तक वो बालक नहीं बढ़े। याकूब का 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। हाँ, सिर्फ सुनने वाला नहीं लेकिन करने वाला भी है। यानी कि आशीष पाने के लिए ये दोनों वर्सेस को कंबाइन कर लेंगे तो हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है, हमें 1 मील नहीं दूसरा मील चलना है, हमें बस अपना कोट नहीं लेकिन अपना शर्ट भी देना है। इब्रानियों का 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा के फल को पाओ। आफ्टर हैविंग डन द विल ऑफ गॉड यू मे रिसीव द प्रॉमिस। यू नीड एंड्योरेंस, यू नीड पेशेंस, यू नीड एंड्योरेंस। परमेश्वर का इच्छा करने के बाद, क्या अभी तक हम लोग पूरा परमेश्वर का इच्छा किए हैं? नहीं किए हैं, करना बाकी है। बट हम लोग अभी से बहुत सारा आशीष को पाने का कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं। एंड गॉड सेज वी नीड पेशेंस, हम लोग का आज्ञाकारिता को बढ़ना पड़ेगा। तो यस, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड ब्लेस मी, लेकिन परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को ब्लेस करने। परमेश्वर बस बोल रहे हैं कि क्यों नहीं तुम ये प्रार्थना करो कि तुम बढ़ो ताकि मैं तुमको आशीष दूं, ताकि तब वो आशीष का सही इस्तेमाल कर सको तुम। मैं अपने फ्रेंड्स को काउंसिल कर रहा था और उनको बता रहा था कि ये अच्छा नहीं है कि तुम लोग समय के पहले धनी बन जाओ। ये अच्छा नहीं है कि तुम लोग समय के पहले धनी बन जाओ। ये अच्छा रहेगा कि परमेश्वर के समय में ही तुम उतना धन को प्राप्त करो जितना तुम सोच रहे हो। एंड वो पूछा क्यों? क्योंकि हम बोले देखो, कुछ दिन जो तुम जितना भी तुम हमसे बात किए हो उससे तो हमको ये पता चला कि तुम कौन सा गाड़ी खरीदने मांगते हो।
और उसमें 30-40 लाख उसी में चल जाएगा। है ना, बहुत बढ़िया गाड़ी है, अच्छा दिखेगा, ये बहुत काम हो सकता है, लेकिन उसी में 30-40 लाख चल जाएगा। लेकिन हम वही बोल रहे हैं, अगर वही 50 लाख या उसका डबल तुमको दे दिया जाए जब तुम 70 साल के हो, तब क्या तुम गाड़ी खरीदोगे? वैसा नहीं। तब तुम क्या करोगे उस 70 लाख का? तब तुम वही 70 लाख को दूसरों के जीवन में बोगे। तब वो चुप हो गया। क्यों? क्योंकि जब उम्र बढ़ता है तब हम लोग का देखने का नज़रिया बदलता है। एंड परमेश्वर वही बोल रहे हैं, आशीष मिलेगा, लेकिन आत्मिक रूप से तुम्हारा उम्र नहीं बढ़ा है। अभी दे दिए तो आपको भी मालूम है कि आप क्या करेंगे, आपका क्या क्या प्लान्स है। और ये प्लान्स जब हम लोग का आत्मिक परिपक्वता आता है तब वो प्लान्स बदलता है। तो हम लोग का मन नया होता है, मन फिराने से मन नया होता है, परमेश्वर का ज्ञान और अंदर आता है, हम लोग का दिल को बदला जाता है, हम लोग से ज़्यादा प्रेम करते हैं, चीज़ों से कम। एंड तब परमेश्वर बोलता है अब तुम अपने पिता जैसे हो। तब हम लोग भी होपफुली कभी ना कभी होना चाहिए कि तुम पिता को देखना चाहते हो, तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो, हमें देखो, हम लोग और भी पिता जैसे बनते जा रहे हैं। हमारे पीछे हो जाओ जैसे हम लोग यीशु मसीह के पीछे हैं, और जैसे यीशु मसीह और पिता एक हैं वैसे हम भी उनके जैसे और भी बनते जा रहे हैं। ये होगा जब आत्मा राज कर रहा है, और आत्मा जब राज करेगा धीरे धीरे करके हम लोग का आज्ञाकारिता बढ़ते जाएगा और हमारा मन में वो परिपक्वता आते जाएगा। एंड इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, हमें ठहरना पड़ेगा, हमें ठहरना पड़ेगा। एक जो किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसमें लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट है, एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे भाई मुझ पे भरोसा करो, इस चीज़ में तुम पैसा डाल दिए ना, 20 साल में तुम्हारा पैसा 10 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा या 10 गुना, आई डोंट नो। एंड तो दूसरा व्यक्ति पूछा, अच्छा तुम्हारा उम्र कितना है? 19। खुद उसका 20 साल नहीं हुआ और वो बोल रहा है भरोसा करो 20 साल में तुम्हारा पैसा इतना हो जाएगा। परमेश्वर हम लोग को इसलिए बोलते हैं ठहरो, ठहरो, धीरज। इब्रानियों का 11:13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ, दूर से देखे प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को। देखिए, वचन को समझना जरूरी है, प्रतिज्ञाओं को समझना जरूरी है, परमेश्वर को समझना जरूरी है। इसीलिए बाइबल में बार बार हम लोग देखते हैं, तुम ये करोगे तुमको मुकुट मिलेगा, ये करोगे तो तुम सब चीज़ पे जय पाओगे, तो सब चीज़ का वारिस बनोगे, सब चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर पिता का सब कुछ हमारा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके फादर आपके मदर बोले ठीक है तुम इतना साल में तुम अपना ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, एंड उस दिन हम तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद देंगे। एंड बहुत लोग वो मोटिवेशन को सीरियसली लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो गाड़ी चाहिए, या क्योंकि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए। एंड वो चीज़ पाने के लिए वो लोग अपना लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को काटना छांटना शुरू कर देते हैं, और फिर एक खतना वाला ज़िंदगी जीते हैं। खतना रहित नहीं, खतना वाला ज़िंदगी जीते हैं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इतना रैंक चाहिए, क्योंकि हमको ये चाहिए, क्योंकि मेरे डैड ये चीज़ प्रॉमिस किए हैं। स्टैंडर्ड 6 में इतना लाओ, स्टैंडर्ड 8 में इतना लाओ, स्टैंडर्ड 10 में इतना लाओ, स्टैंडर्ड 12 में इतना लाओ, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। एंड परमेश्वर भी हम लोग को बोलते रहते हैं तुम जय पाओगे, ये मिलेगा, तुम जय पाओगे, वो मिलेगा, मेरे पास सब कुछ है, सारा अधिकार, सारा सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो देंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारा परिपक्वता बढ़ना है, तुम्हारा आज्ञाकारिता बढ़ना है। एंड धीरज के साथ जब हम लोग बढ़ते रहेंगे तब हम लोग का मन बदलते रहेगा, और तब वो उम्र, जब वो आत्मिक उम्र आएगा, तब वही आशीष को पाके अब हम लोग उसको एक आत्मिक रूप से इस्तेमाल करने लगेंगे, आत्मिक रूप से इस्तेमाल करने लगेंगे।
इब्राहिम ने भी प्रतिज्ञाओं को नहीं पाया, लेकिन प्रतिज्ञाओं को सुना और विश्वास से देख लिया वो प्रतिज्ञा मेरी ओर आ रहा है, मैं उस प्रतिज्ञा की ओर बढ़ रहा हूँ, और वो प्रतिज्ञा को पाने के लिए अगर मुझे पृथ्वी में बिल्कुल एक साधारण जीवन जीना पड़े तो लॉर्ड मैं तैयार हूँ यहाँ पे एक साधारण जीवन जीने के लिए। साधारण जीवन को लीगलिज्म या व्यवस्था मत सोचिए, मत सोचिए, क्योंकि जब भी हम लोग साधारण जीवन को कभी कभी सोचते हैं कि नहीं ये तो लीगलिज्म है, कि ये लोग सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, या ये लोग कोई ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, या ये लोग अपना बाल नहीं रंगते हैं, या जब भी लोग ऐसा किस्म का लाइफस्टाइल को क्रिश्चियनिटी में कोई चर्चेज में देखते हैं या चर्च हिस्ट्री में पढ़ेंगे और बोलेंगे कि ये लोग तो कलर्ड कपड़ा, यानी कि ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, सिर्फ प्लेन क्लोथ्स पहनते थे, मतलब अगर ग्रे पहन रहे हैं तो सिर्फ ग्रे, ब्लैक पहन रहे हैं तो सिर्फ ब्लैक, वाइट तो सिर्फ प्लेन वाइट, प्रिंटेड नहीं पहन रहे हैं, ये तो लीगलिज्म हुआ ना। आई टेल यू समथिंग, बहुत जल्दी हम लोग जज कर लेते हैं। एंड अगर हम लोग कलीसिया के इतिहास में देखेंगे कि ये कौन से चर्चेज में और किस समय में ये सब चीज़ आया था, तो हम लोग देखेंगे कि ये साधारण जीवन तब रिवाइव हुआ था जब बहुत ही बड़ा बड़ा आत्मिक रिवाइवल आया था। यानी इसीलिए अगर कोई मेरे सामने कोई हरा नीला बाल रंग के बोल देगा कि देखो जॉन वेस्ली जो साधारण जीवन के बारे प्रचार करता था, या पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च में अगर वो लोग ज्वेलरी के खिलाफ बोलते हैं तो वो लोग लीगलिस्ट हैं, तो हम बोलेंगे भाई हम वो लोग का ज़्यादा सुनेंगे और तुम अपना बाल रंग के हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना बाइबल को कितना बार ऊपर से नीचे, एक कोना से दूसरा कोना तक पढ़ चुके होंगे, और तुम थोड़ा सा बाल रंग लियो और तुमको लगता है, और तुम एक कहीं से एक तो शब्द सुन लियो कि ये व्यवस्था है और उसी को तुम बार बार दोहराया जा रहा है। नहीं सुनना हमको तुम्हारा, क्योंकि हम देखे हैं बाइबल का चर्च का हिस्ट्री में जब भी रिवाइवल आया लोग का जीवन और भी ज़्यादा साधारण होते गया, अपने लाइफ से वो लोग डिस्ट्रैक्शंस हटाते गए, अपनी ओर लोगों को इट्स नॉट कि वो लोग नहाना छोड़ दिए, बाल काटना छोड़ दिए, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए सुंदरता कहाँ पे है, सुंदरता पवित्रता में है, सुंदरता पवित्रता में है। देवर होलीनेस मूवमेंट वाले मीटिंग्स में दे वुड नेवर से कितने लोग प्रभु को ग्रहण किए, वो लोग ऑल्टर कॉल करते एंड वो लोग देखते कि कितने लोग में होलीनेस आया, पवित्रता के लिए वो लोग अपने आप को कमिट किए, एंड आई हैव सीन दिस। हम चर्च हिस्ट्री तो खैर बाद में पढ़ते और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद ये बाइबल स्टडीज़ में अपना में देखे कि बहुत बार जब जवान लोग प्रभु को ग्रहण किए वो लोग वापस जाके अपने कबर्ड से, अपना सूटकेसेस से संसारिक कपड़ों को निकाले और जला दिए। रात में सपना देखे कि वो सब कपड़ा जल रहा था और जला दिए बिना किसी के बोले। और बाद में हम पढ़े कि जब जॉन वेस्ली का मीटिंग्स होता था और कभी कभी कुछ फैशनेबल बिजनेसमैन लोग आते थे, अपना एकदम एक्सपेंसिव, उस समय का फैशन रहता था कि मेन वुड वेयर लाइक जैसा लड़की लोग का फ्रॉक्स में फ्रिल रहता है तो उनका शर्ट्स में रहता था, एंड वो लोग आते सामने और रोते रोते वो सब चीज़ को फाड़ देते। वो सब चीज़ को फाड़ देते। देखिए, जब तक हम लोग का मन नहीं बदलेगा, जब तक हम लोग आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ेंगे, हम लोग प्रभु में जहाँ पे भी हैं हम लोग वहीं पे स्थिर रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, और वहीं से रह के हम लोग बोलेंगे प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए। प्रभु बोलेंगे नहीं, तुम्हारा मन अभी भी संसारिक है, तुम संसार के लिए इस्तेमाल करोगे सारे आशीषों को, लेकिन आत्मिक परिपक्वता आ जाएगा। क्योंकि आजकल जिस तरीका से यूट्यूब में बाइबल को इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है और जिस तरीका से प्रीचर्स भी चर्चेस को बना दिए हैं और अपना उनका ड्रेसिंग है,
it will not be acceptable in any kind of revival atmosphere जहाँ पे रियली पवित्र आत्मा बहुत ज़ोर से काम किया था. Why? क्योंकि ये सब कुछ क्या बन जाता है? डिस्ट्रैक्शंस बन जाता है, डिस्ट्रैक्शंस बन जाता है एंड पवित्रता से हटा देता है. कल एक पास्टर आए थे मिलने के लिए एंड वो बता रहे थे कि उनका चर्च में डिलीवरेंस सेशंस चल रहा है और वो बताए कि एक दुष्ट आत्मा सब निकाल रहे थे और अपने चर्च को जगाने के लिए वो बोले कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपने चर्च को थोड़ा सा जगाने के लिए मैंने ऐसा किया कि मैं उस दुष्ट आत्मा से मैं पूछा कि बताओ यहाँ पे किसका किसका हेयर स्टाइल तुम्हारे ओर से है. और दुष्ट आत्मा निकल कर इसका, उसका और उसका, और किसका किसका कपड़ा और किसका किसका इसका लिपस्टिक, उसका कपड़ा. Why? It is. I am telling you. मनुष्य का गिरने के बाद, आदम के समय से मनुष्य गिरने के बाद it has had an effect on clothes. दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे पढ़िए कि वो नंगा रहता था. Demons affect clothing. Demons affect fashion. Demons affect clothing. And yes, हम लोग दिन से रात तक ये सब चीज़ में आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज सीन चर्च हिस्ट्री में जब रिवाइवल आया है तो चर्च में सुधार आया है. चर्च में एक साधारण जीवन, एक पवित्र जीवन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. नाउ आई अंडरस्टैंड कि सब जगह का कल्चर अलग है. इंडिया में वेस्टर्न वर्ल्डलीनेस का मतलब वो नहीं है जो वेस्ट में. अभी खैर सब जगह सेम होते जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं. लाइक इंडिया में जैसे जॉन वेस्ली के समय में लोग जिस चीज़ को फैशन समझते थे, ऑब्वियसली इंडिया में दूसरा चीज़ को समझते थे. अलग अलग चीज़ पहनते थे. लाइक फॉर एग्जांपल केरला में कोई चर्चेज़ में वो लोग मूंछ को अलाउ नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक समय था और वो वाला कॉन्टेक्स्ट में जब वो एक घमंड का निशानी था. हम हार गए तो हम अपना मुंह हटा देंगे, वो एक घमंड का निशानी था. तो इसलिए वो लोग डिसाइड किए रखेंगे ही नहीं. जिस चीज़ से घमंड उत्पन्न हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन एनजेंडर प्राइड, रखेंगे ही नहीं. एंड दे डिसाइडेड, यू नो व्हाट, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जिससे घमंड उत्पन्न हो सकता है, जिससे कंपैरिजन्स हो सकता है, घमंड उत्पन्न हो सकता है. एंड दे डिसाइडेड साधारण जीवन. नाउ क्या वही चीज़ अप्लाई करेगा ओवरऑल सारे इंडिया में? ज़रूरी नहीं है. द प्रिंसिपल इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मूछ है या नहीं. प्रिंसिपल इज़ कि संसारिकता या कोई भी चीज़ जिससे घमंड उत्पन्न हो सकता है, जिसमें गर्व कर रहे हैं, लॉर्ड हटा देंगे. तब हम लोग, उसी का मतलब है कि पृथ्वी में परदेसी जैसा. यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे किसी से बेहतर नहीं दिखना है. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ. यहाँ पे कोई कंपटीशन में एंटर नहीं करना है कि कौन कितना अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे जैसा हमको दिखना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ. जब आप एक प्रतिज्ञा को देख लिए हैं आपकी ओर आते हुए और आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे वैसा हर एक किस्म का कंपटीशन, लाइफस्टाइल का कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और आप एक तंबू में रहने के लिए, मतलब वैसा किस्म का जीवन के लिए आप तैयार रहेंगे. और इब्राहिम निराश नहीं था. इब्रानियों का 11 का 13 पढ़ लिया ना, यूहन्ना का 8 का 56. तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था. और इब्राहिम मेरा, योर फादर रिजॉइस टू सी माई डे, मेरा दिन को उसने देखा और आनंदित हुआ. वो मेरा दिन देखा एंड ही रिजॉइस्ड टू सी माई डे. इब्राहिम दूर से यीशु मसीह को देख लिया, यीशु मसीह आएंगे मेरे वंश में, और वो आनंदित हुआ.
यानी कि वो एक परदेसी का जीवन जी के ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड, ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड। वो एक परदेसी का जीवन जीने के बावजूद भी वो एब्सोल्युटली आनंदित था, क्योंकि उसको मालूम था उसको क्या मिलने वाला है। इसलिए सुनना ज़रूरी है, सुन के करना है, उसके बाद धीरज रखना है और लगातार आनंदित रहना है, लगातार आनंदित रहना है। क्योंकि हम लोग को वो सब जो भी परमेश्वर रखे हैं वो सब मिल रहा है और मिलेगा। जितना ज़्यादा मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझ पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ज़रूर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए आगे में शायद सही नहीं रहेगा, और वो पहले से नहीं बोल देते हैं कि ये नहीं है, या मेरा आत्मिक जीवन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ठहरो ठहरो। वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ठहरो। बहुत सारी चीज़ के लिए मैं फॉर एग्जांपल जेमा को अगर मैं कहता हूँ नो, what I realize कि what I really mean is not no, what I mean is wait, grow up। वो जाके कैंची पकड़ने मांगती है, I say no, but what I mean is I will not say no forever। नहीं, तुम्हारा लाइफ में तुम कभी कैंची नहीं पकड़ सकते हो, ऑब्वियसली नहीं। तुमको ज़रूरत होगा कैंची का कभी ना कभी, एंड हम थोड़ी आके तुम्हारे लिए हमेशा पेपर काटते रहेंगे। बट टिल दैट एज कम्स, ठहरो। एंड आई रियलाइज बहुत सारा चीज़ जो परमेश्वर आज शायद हम लोग को लग रहा है कि प्रभु आप तो अभी तक नहीं दिए, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? ठहरो। हम लोग अपने बच्चों को नहीं बोल देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग के मन में क्या रहता है? ठहरो। वैसे ही परमेश्वर बहुत सारे चीज़ हम लोग को बोलते हैं ठहरो 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 ठहरो। तुम अभी नहीं, हमको हाँ नहीं में जवाब दीजिए ना, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो परिपक्वता नहीं है। तुमको सब कुछ बाइनरी कोड में चाहिए, जीरोज एंड वंस। परिपक्वता नहीं है। परमेश्वर के लिए, इज़राइल के लिए परमेश्वर का एक समय था राजा देने का। कब? जब एक व्यक्ति रहेगा जो परमेश्वर के मन मुताबिक बन जाएगा, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को बोलेंगे तुम राज करो, क्योंकि तब सारे इज़राइल का भला ही है। लेकिन लोगों को उस व्यक्ति का आने का 40 साल पहले राजा चाहिए था। एक पीढ़ी पहले से उनको राजा चाहिए। परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? रुको, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स हम समझते हैं, तुम लोग को यूनिटी चाहिए, सब इज़राइल अलग अलग गोत्र हैं, तुम लोग बहुत बढ़ गए हो संख्या में, तुम लोग को यूनिटी चाहिए। एक व्यक्ति रहेगा, तुम लोग का बैनर टाइप करेगा, तुम लोग सब एकजुट होके जाओगे, डिसीजन लेना इजी रहेगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, तुम लोग बहुत सारा अपना आर्ग्यूमेंट्स लाए हो, लेकिन उनका एक ही आर्ग्यूमेंट था, हम लोग बाकी संसार जैसा होना चाहते हैं। परमेश्वर बोले देखो, तुम लोग के लिए हम राजा रखे हैं 40 साल बाद, 40 साल बाद नहीं, हम लोग को अभी चाहिए, अभी हम लोग को राजा दो। एंड बहुत बार परमेश्वर दे देते हैं। लेकिन जब भी आप लड़ झगड़ के ढिठाई से, क्योंकि ढिठाई अधर्म है, ढिठाई से परमेश्वर के हाथ से कुछ लेना चाहेंगे, बलाम जैसा किया, इज़राइल ने जैसा किया, अपनी मूर्ति के अनुसार बार बार पूछेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार पूछेंगे और मांगेंगे, तब आप निराश हो जाएंगे और तब आप खुद से और भी गुस्सा हो जाएंगे और तब वो वही क्रोध को दूसरे की तरफ मिसडायरेक्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर धीरज नहीं है, परिपक्वता नहीं है। आप अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर ने कहा ठीक है चाहिए हम दे देंगे, लेकिन तुम रोगे, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम परिपक्व नहीं हो। इसहाक कब शादी किया? 40। आई बिलीव 1 साल पहले शादी करता, वो परमेश्वर का टाइम नहीं था उसके लिए। इसहाक का बेटा कब हुआ, मतलब जुड़वा बेटा, जब वो 60 साल का था। कल्चर के खिलाफ, समाज के खिलाफ, वी हैव टू टेक अ स्टैंड। लॉर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फैमिली लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। प्रभु मैं आपका समय के लिए रुकूंगा। वहीं पे आप देखिए, लूत के 2 बेटी, नहीं समय हट जा रहा है, अब कोई लड़का है ही नहीं, हम लोग क्या करें, ठीक है पिता के साथ रिश्ता कर लेते हैं। गलत, गलत।
देखो देखो, ईसौ का आने के पहले हम खाना बना दे रहे हैं, जाके अपना पिता को खिला के उसको धोखा दे के आशीष ले लो। गलत, बिल्कुल गलत। आत्मा का फल नहीं प्रोड्यूस हुआ है, धीरज नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन हमको प्रभु का आशीष चाहिए। हमको प्रभु आप आशीष दे दीजिए। क्या आत्मा का फल उत्पन्न हुआ है याकूब में? नहीं। हाँ, याकूब में नहीं, लेकिन उसको अपना पिता का आशीष चाहिए। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लोग को ये परिपक्वता रखना है कि वही आशीष हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड किसके मांगने से मिला हम लोग को? हम लोग के मांगने से। क्या परमेश्वर नहीं देने मांगते? जरूर देने मांगते थे। एक समय में जब हम लोग उस आशीष के को समझदार बन जाएंगे, उस आशीष को इस्तेमाल करने के लायक हो जाएंगे। अगर आप एक नौकरी के लिए कोशिश करें, घर में पैसा का जरूरत है, मिला नहीं मिला, लेकिन फिरौन आपको कहेगा कि आपको उस नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेबूकदनेस्सर कहेगा उस नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो ठीक है, आप ठहर जाइए। कि तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं नौकरी नहीं करूं। नहीं, करिए, लेकिन फिरौन और नेबूकदनेस्सर के लिए करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कोई लोग दूसरे एक्सट्रीम में चल जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि नौकरी मेरे पास आएगा, नौकरी के पास मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरे एक्सट्रीम है वैसा भी मत, नहीं नौकरी मेरे पास है। बिकॉज आई हैव मेट बिलीवर्स जो लोग सालों साल से नौकरी में नहीं हैं, एंड उनकी पत्नी उनको छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। क्रिश्चियन फैमिलीज, क्यों? क्योंकि वो एक चीज में अटके हुए हैं, बोल के कि हमको विश्वास है कि नौकरी मेरे पास आएगा। एंड वो बोलते रहे, सब लोग को भविष्यवाणी देते रहते हैं, एंड कोई भविष्यवाणी उनसे लेता नहीं है। सो दैट इज वेयर हम लोग को अपने आप को हमें अपने आप को जज करना है। एंड वी शुड नॉट थिंक कि अगर प्रभु ने रियली नहीं कहा है आपको कि आपके पास नौकरी आएगा, तो आपको जाके ढूंढना है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फिरौन के लिए और नेबूकदनेस्सर के लिए काम करना है। मतलब आपको ठहरना पड़ेगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, विश्वास करते रहना पड़ेगा, आशा नहीं खोना है। 2 जगह से रिजेक्शन हो गया, आशा खो दी है, नहीं, निराश नहीं होना है, ट्राई करते रहना है। व्यवस्था विवरण का 28 का 1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो ये सब आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा और तुझ पर पूरे होंगे और तुमको ओवरटेक भी कर लेगा। मतलब तुम आशीष के पीछे मत भागो, तुम आज्ञाकारिता के पीछे भागो। तुम ये देखो अपने ज़िंदगी में कि कौन कौन सा आज्ञा तुम नहीं कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। क्या तुम दूसरा मील चले? क्या जब शर्ट मांगा गया था कोट भी दिए? क्या तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम किए? हम लोग बोलेंगे प्रभु हम तो अपनों से प्रेम नहीं कर पाए। हमें आज्ञाकारिता पे पहले ध्यान देना है। और परमेश्वर बोल रहे आज्ञाकारिता पे ध्यान दोगे सब आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा और आगे भी चला जाएगा। मतलब तुम्हारे जाने के पहले द्वार सब खुल जाएगा। लेकिन क्या पे ध्यान देना है? आज्ञाकारिता पे ध्यान देना है। ये सब आज्ञाओं मानोगे तब आशीषित हो गए। वही चीज़ नए नियम में, सुनने से आशीष नहीं मिलेगा, सुन के करने से, आज्ञाकारी होने से। प्रभु मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, शादी में ब्रेक थ्रू चाहिए, फैमिली में ब्रेक थ्रू चाहिए, मिनिस्ट्री में बच्चों के साथ ब्रेक थ्रू चाहिए। बस समय को मत देखते रहिए कि कब वो समय आएगा ब्रेक थ्रू मिलेगा, नहीं, उसको धीरज नहीं बोला जाता है। धीरज मतलब जब आप ठहरे हुए हैं तब भी आपको विश्वास से बोते रहना है, विश्वास से बोते रहना है। भजन का 126 का 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हाँ, अब वर्स 5वां पद को फिर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोज हु सो इन टीयर्स।
बहुत बार ट्रेडिशनली ये वाला वचन को हम लोग समझते हैं कि जो लोग आंसुओं को बो रहे हैं, मतलब जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो लोग दुखी हैं, प्रभु कह रहे हैं डोंट वरी, तुम दुखी मत रहो, तुमको जरूर प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये भाषा को देखेंगे तो लिखा हुआ है दोज हु सो इन टीयर्स, नॉट दोज हु सो टीयर्स। ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आंसुओं को बोते हैं, ओके। लेकिन जो थिंक ऑफ टीयर्स एज अ सीजन इन योर लाइफ, कि आपका लाइफ का एक मौसम है। दोज हु सो इन समर सीजन, दोज हु सो इन विंटर सीजन, विंटर में खैर नहीं, वैसे ही दोज हु सो इन द सीजन ऑफ टीयर्स, जो अपने दुख के समय में बोते हैं, जो अपने विलाप के समय में बोते हैं, उनके लिए ये प्रॉमिस है कि वो आनंद के साथ, दे विल रीप इन जॉय। एंड नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है वो ही कंटिन्यूली गोज आउट। कैन आई हैव KJV? दे गो आउट वीपिंग, he goes forth and weeps bearing precious seed। उसका ये नहीं लिखा हुआ है कि वो जाके आंसुओं को बो रहा है। ही इज नॉट बेयरिंग टीयर्स, वो अपने हाथ में अपने आंसुओं को नहीं लिया हुआ है। बहुत बार मसीही लोग अपने हाथ में अपने आंसुओं को लेके बोते रहते हैं। फेलोशिप करेंगे, वहां पे आंसुओं को बोए, किसी का घर जाएंगे वहां पे आंसुओं को बोए, चर्च जाएंगे वहां पे भी अपने आंसू, सब जगह आंसू 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 को बो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये वर्ष ये नहीं कह रहा है कि वो लोग अपने आंसुओं को बो रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यस वो विलाप कर रहे हैं, यस वो रो रहे हैं, लेकिन वो लोग बाहर जा रहे हैं और हाथ में वो लोग वो आत्मिक वचन को रखे हुए हैं, वो लोग वो सीड, वो लोग वो बीज को रखे हुए हैं, वो बहुमूल्य बीज को रखे हुए हैं। यानी कि हम लोग की ज़िंदगी में पर्सनल फैमिन का ऐसा मौसम रहेगा, जब दुख रहे, तकलीफ रहे, अकाल रहे, घटी रहे। यीशु ने कहा था कि जब ऐसा समय आता है, जब बहुत लोगों की ज़िंदगी में वो वचन आता है और वो लोग अचानक से वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं और आनंदित रहते हैं, आनंद के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, तब अचानक से सूरज जोर से चमकने लगता है और तब क्या होता है, वो पौधा को मुरझा जाता है। वैसे ही बहुतों की ज़िंदगी में परमेश्वर बोल रहे हैं वो मौसम आएगा जब सूरज बहुत ही जोर से चमक रहा है, जब दुख, तकलीफ, अकाल, परेशानी, तूफान आएगा, जब आंख सूखा नहीं रहेगा और जब आंसू निकलेगा। और वो आंसू का मौसम बोने का मौसम है, वो मुरझाने का मौसम नहीं है। मुरझाने मतलब ही दैट गोज इनसाइड वीपिंग, नॉट गोज आउटसाइड। रो रो के अपने आप को बंद कर लिया, रो रो के वापस घर चल गए और बस अब बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अब टीवी ऑन है एंड बिंज वॉचिंग शुरू। डिप्रेशन, बात नहीं करना, फेलोशिप नहीं करना, प्रेयर ख़त्म, मीटिंग स्किप करना, प्रेयर के लिए कॉल नहीं करना, किसी के साथ प्रेयर नहीं करना। क्या हो जा रहा है? डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। वचन में लिखा है जब तुम डिप्रेशन में हो, जब वो अकाल में हो, जब दुख में हो, गो आउट, गो फोर्थ, गो आउटसाइड, डोंट गो इनसाइड। अंदर जाके बंद मत हो जाओ, गुफा में जाके अपने आप को बंद कर दे रहे हैं, नहीं, गो आउटसाइड। और हाथ में क्या लीजिए? आंसुओं को नहीं। हम आपको बताने हैं कि मेरे ज़िंदगी में कितना दुख है, नहीं, अपने हाथ में परमेश्वर का वचन को लीजिए, अपने हाथ में वो बीज लीजिए जिससे दूसरे को आशीष मिल सके। ये है वो दूसरा मील जाना। पहला मील मतलब आप अपने बारे सोचे, लेकिन आपका जीवन उतना ठीक नहीं चल रहा। दूसरा मील जाइए, दूसरों के लिए जाइए, क्योंकि ये बीज को खाने वाला बीज नहीं है, ये बीज बोने वाला बीज है। कैन यू गो टू ESV वर्जन? ये बोने वाला बीज है। बहुत डिसाइपल्स बोले यीशु मसीह को ये शिक्षा बहुत कठिन है और वो लोग यीशु मसीह के पीछे आना छोड़ दिए। जॉन चैप्टर 6 में वैसा हुआ था। जब
जब जमीन कठोर है, जब सूरज इतना जोर से चमक रहा है, जब अकाल है, जब जमीन कठोर है और इतना समय से आप बारिश के लिए रुके हुए हैं और बारिश नहीं आ रहा है, परमेश्वर उस समय बोल रहे हैं बारिश से जमीन कोमल नहीं होगा। अभी क्या से कोमल होगा? आंसुओं से। नहीं तो वो बीज मर जाएगा। आंसुओं से कोमल होगा। आंसुओं से कोमल करो वो जमीन को बीज के लिए। कभी कभी बारिश का मौसम नहीं रहता है, आंसुओं का मौसम रहता है। वही मौसम में हम लोग को बोना है, यानी कि दूसरों का सेवा करना है। चुपचाप से जाके घर में बैठ के रोते नहीं रहना है। हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग जैवन से भी बढ़कर हैं। और जो लोग जैवन से बढ़कर हैं, तकिया लेके घर में जाके रोते नहीं हैं। परमेश्वर के दास ने कहा यीशु मसीह में ले आए, जिए, मरे, फिर से जी उठे। हम चुने गए हैं क्या करने के लिए? घर जाके रोने के लिए नहीं। हम अपना सारा दुख तकलीफ में बाहर जाएंगे और परमेश्वर जो बीज दिया है उसको बोते रहेंगे। चाहे खून भी निकले, इवन इफ यू आर ब्लीडिंग, आई विल स्टिल बी लीडिंग। हम अगुवाई करते रहेंगे, चाहे जितना भी सहना पड़े। दैट इज वॉट वी नीड टू डू। इसके लिए हम लोग चुने गए हैं। दैट इज वॉट लीडरशिप इज। दैट इज वॉट क्रिश्चियन मैच्योरिटी इज। कि हम लोग बीज बोते रहे, कि हम लोग वो दूसरा मील चलते रहे, और दूसरा मील ज्यादा मुश्किल है। इब्रानियों का हाँ, यहाँ पे देखिए, ही हु गोज आउट वीपिंग शैल कम होम विथ शाउट्स ऑफ जॉय। इब्रानियों का 13 का 12 और 13। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हाँ, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को पवित्र करने के लिए यीशु ने क्या किया? वो फाटक के बाहर गया। सारा दुख को उठा के, क्रूस को उठा के, क्रूस उनको अंदर से ढोना था और बाहर क्रूस ढो के वो बाहर गया। आप अपने आंसुओं को लेके बाहर जाइए और लोगों में आप परमेश्वर का गॉस्पेल को बोइए। आंसुओं को मत बोइए, गॉस्पेल को बोइए, गॉस्पेल को बोइए। उनका सेवा कीजिए। और वर्स 13 में लिखा हुआ है, इसलिए चलो हम भी बाहर जाए। लेट अस ऑल्सो गो आउट आउटसाइड द कैंप बेरिंग हिज रिप्रोच। वो निंदा को सहते हुए हम लोग बाहर जाए। यीशु मसीह बाहर गए और गॉस्पेल को बोए हम लोग की ज़िंदगी में, और अपना खून से हमारा कठोर हृदय को कोमल किए। गॉस्पेल हम लोग के पास रिसेंटली आया होगा, लेकिन 2000 साल पहले ही हम लोग का कठोर मन को कोमल करने के लिए वो लहू छिड़का दिए थे। लहू अपना पूरा छींट दिए थे 2000 साल पहले ही, एक बार से हमेशा के लिए। आंसुओं का सीजन इज द सीजन फॉर सोइंग। एंड रिजल्ट को देखिए, वापस वही साम्स 126 वर्स 6। रिजल्ट को देखिए, दे विल कम होम वन डे। verse 6 and ESV version. Shall come home with shouts of joy. एक दिन रहेगा when we are called to come home. There will be one day when we are called to come home. And that day the question is, will you come home empty? क्या आप खाली हाथ लौटेंगे? Because you did not use the season of tears. या भरे हाथ के साथ लौटेंगे? I don't want to be empty handed. वो दिन जब परमेश्वर बुलाते हैं मुझे घर जाने के लिए। और अगर उस दिन मुझे देखना है कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ शीव्स, बहुत ज़्यादा कटनी हमको, बहुत ज़्यादा फसल हमको ले जाना है, तो यू नो व्हाट हम क्या करेंगे? यहाँ पे चाहे आंसू हो चाहे बारिश हो, हम दोनों मौसम को इस्तेमाल करेंगे प्रभु का सेवा करने के लिए। हर एक मौसम को इस्तेमाल करेंगे प्रभु का सेवा करने के लिए। अकाल में भी सेवा करेंगे और हर एक किस्म को उन्नति में भी सेवा करेंगे। क्यों? एक समय रहेगा जब और सेवा नहीं कर सकते हैं। वो समय रहेगा घर जाने का समय, और घर हम खाली हाथ नहीं जाने मांगते हैं।
और ताकि घर हम लोग खाली हाथ नहीं जाए, आज हमें संतुष्ट रहना है और आनंदित रहना है। क्योंकि उस दिन बहुत लोग घर, जब उनका टाइम आ जाता है घर जाने का, तो उनके मन में डर है, हम मरने वाले। उनको अजीब अजीब सपना आता है, क्रिश्चियंस को अजीब अजीब सपना आता है, डरावना डरावना सपना आता है मृत्यु का। उनको डाउट रहता है कि स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं। पास्टर को बुलाओ, पादरी को बुलाओ कम्युनियन के लिए, बपतिस्मा दे दे, कम्युनियन दे दे, प्रभु भोज दे दे मृत्यु के पहले। आई एम नॉट सेइंग ये अपने आप में गलत है, लेकिन क्या ये डर से उत्पन्न हो रहा है, क्या ये संदेह से उत्पन्न हो रहा है? तो आप कैसे घर जा रहे हैं? क्या आप आनंद के साथ घर जा रहे हैं? नहीं। जो व्यक्ति का अभिलाषा है कि लॉर्ड मैं आनंद के साथ घर जाने मांगता हूँ, यहाँ पे आपको दूसरे चीज़ों में आनंदित रहना पड़ेगा, तब संतुष्ट रहना पड़ेगा और दूसरे चीज़ों में आनंदित रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम है कि लॉर्ड सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो मेरे लिए आगे आने वाला है, सबसे बड़ा आनंद तो मेरे लिए आगे आने वाला है। कौन सा दिन? घर जाने वाला दिन। वो दिन मैं आनंदित रहना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए, वो दिन आप कुछ खरीदना चाहेंगे क्या उस दिन? नहीं, उस दिन हम लोग कुछ नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जो भी आप उस दिन खरीदे आप लेने जा सकते हैं। उस दिन क्या हम लोग आनंदित रहेंगे? संसार नहीं, लॉर्ड मेरा हाथ में प्रेशियस सीड रहना चाहिए होने के लिए। वो लोग अपना लाइफ में बड़ा चित्र को नहीं, उनका आंख उसी पे बना हुआ है, उससे उनका मन नहीं हटा है। दूसरा कोरिन्थियों का 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, ये है वो बड़ा चित्र जिस पे पौलुस का मन बना हुआ था। इसीलिए एंड यू नो, ये जो शब्द है महिमा, बड़ा अत्यंत और महत्वपूर्ण और अनंत महिमा। महिमा इज अ वेट, इट्स अ क्वांटिटी, इट्स अ क्वांटिटिव वर्ड, यानी कि वो एक ऐसा चीज़ है जिसको आप तौल सकते हैं। यू नो, जैसे आप केला को तौल सकते हैं, कोई भी सब्जी को आप तौल सकते हैं, वैसे ही महिमा इज़ अ वर्ड। इट्स नॉट लाइक ह्यूमिलिटी को, नम्रता को तौल नहीं सकते हैं, राइट? वो सुंदर है, सुंदरता को तौल नहीं सकते हैं। बट महिमा एक ऐसा शब्द है जिसको आप तौल सकते हैं। और यीशु मसीह और डैनियल का वचन में लिखा भी हुआ है कि उस समय सब लोग तारा जैसा चमकेंगे। पौलुस भी बोलता है सब लोग तारा जैसे चमकेंगे, अलग अलग, सबका महिमा अलग रहेगा। किसी के ऊपर ज़्यादा महिमा रहेगा, उनका महिमा का बोझ ज़्यादा रहेगा, उनका महिमा का वजन ज़्यादा रहेगा। कैसे किसी का महिमा का वजन ज़्यादा हुआ? क्योंकि वो लोग डिसाइड किए थे कि आंसुओं का मौसम में बोते रहेंगे। वो लोग मौसम देख के बोने वाले लोग नहीं थे। वो लोग ये नहीं देखे अरे अभी हमको मूड नहीं है, हमको मन नहीं कर रहा है अभी बोने के लिए, आज मूड ठीक नहीं है मेरा। They were able to disconnect themselves from the mood. Can you do that? F5 से क्या होता है कंप्यूटर में? रिफ्रेश, स्पिरिचुअली रिफ्रेश। रिफ्रेश होके गए और बोते गए। दैट इज़ हाउ द चर्च हैज़ बीन सक्सेसफुल। इट्स नॉट कि चर्च में दुख कम आया है, बहुत आया है दुख चर्च में, लेकिन वो लोग अपने दुख को इस्तेमाल किए, वो मौसम को इस्तेमाल किए और भी फलवंत होने के लिए, और भी फलवंत होने के लिए। एंड जैसे यीशु मसीह का रिजरेक्टेड बॉडी में भी चिन्ह था, वैसे ही सम पीपल से कि रिजरेक्टेड बॉडीज में भी कुछ ना कुछ मार्कर्स रहेगा जिससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति दुख में कितना बोया। सिर्फ दुख को कितना बोया नहीं, दुख में कितना परमेश्वर को परमेश्वर के कामों को करते गया।
परमेश्वर का सेवा को करते गया। आई थॉट वी विल लुक एट द सेकेंड रिक्वेस्ट जो उसके बाद गिदोन ने कहा, बट आई थिंक विल रन आउट ऑफ टाइम, इसलिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, हमें मदद कीजिए लॉर्ड गॉड की हम आपको समझे और जो आपका योजना है हमारे लिए उसे समझे लॉर्ड। हमें परिपक्वता का ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम आपके नज़रिए के अनुसार देखें अपने जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं, हमें मदद कीजिए ज़िंदगी में हर एक मौसम में बोते जाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide. Whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is great.